since we have finished 2 chapters, okay, we are quite ahead. We've got only 4 chapters with us. We have finished 2 chapters, and I don't think in your school, at least first chapter might also be over as of now. So what we will do, we will utilize this time, which is very good for us to get into depth of chapter 3 and chapter, actually the interesting chapters are chapter 3 and chapter 4. Chapter 3 and chapter 4 will be actually forming the base of chemistry for you, and they are very important. And I would not like to restrict myself to what is there in NCERT, right? Even I will not follow the book pattern of chapter, because to teach you the chapter in one go is very easy for me, but if I teach it the way it is in the chapter, आपको interest नहीं आएगा. So what now for the few classes we will do is that we will learn about lot of new concepts in chemistry, which will be actually, when I teach chapter 3 goes little bit long. It will be like that motion jaisa rahega. Okay, it will go long, and in that lot of chapter 4 parts will be covered. Not only chapter 4, many things which you are not aware of in chemistry as of now, since you have come from just grade 8, that thing has to get opened. So few requirements we have. As soon as you start from chapter 3 onwards, whatever I teach you, it will there be in the book also, but you have to understand it very nicely. If you don't understand, please ask. And from next class onwards, please have a printout of a periodic table. If you are online right now, you don't have printing facility, no issues. At least keep a printout of a A4 size periodic table with you in the class whenever you are coming. Your CBSE will never ask you to understand the periodic table, but you will understand it, because that is the only way you want to understand chemistry for the future class of 11, because whatever you are studying in 9 will be there in 11. अगर आपका भी फाउंडेशन क्लियर नहीं रहेगा, आप समझोगे नहीं. So next class, if you want me to put a PDF, I can put a PDF, A4 size PDF also on that. If you are online, please keep the PDF online with you. If you are coming offline to class, paste that PDF on your paper. दो एक कॉपी, क्योंकि बिना पीरियोडिक टेबल के आप ये चैप्टर आगे से समझ नहीं पाएंगे. So whatever I am going to teach for chapter 3 now, it may not be as per the book, but don't worry about the book chapter 3. It's like you are slowly learning to ride some truck and bus. That is only riding an auto. Once you learn this, आपको आराम से हो जाएगा. और हम इसलिए क्यों सीख रहे इतने डेप्थ में? We have lot of time now, and ask questions. तभी आप क्लियर हो पाओगे, वरना आपको ये क्लैरिटी नहीं आएगा. पूरा केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के ऊपर जाएगा यहाँ पे. Unless you understand the mathematics part, it will be difficult. Is that clear? Any questions anyone has? We are studying chapter 3 only. The name of chapter 3 is atoms and molecules. I won't go as per Lakshmi Singh, neither I'll be going as per NCERT, but we will cover some portions from the other chapter, 4th chapter, that is structure of atom first, so that we get to have a holistic idea. ठीक है, शुरू करें. Okay, so the name of the chapter is atoms and molecules. So let's start with the basic concept of atoms, and let's start with concepts of molecules and atoms. ठीक है, तो आइए, हमारे चैप्टर का नाम है atoms and molecules, which means and this chapter has been cut by CBSE a lot, which I am not okay with. Earlier this was very nice, it was elaborate, और elaborate होना जरूरी है, वरना आप जाके grade 11 में आपको limping हो जाएगा. Atoms and molecules, even if you apply for some coaching classes, tests and all after grade 10, आपको मुश्किल होगा if you don't have the clarity with you. ठीक है, so let's go back to atoms. A lot of discussion on atoms we have already done in the previous class. So what was our discussion? Our discussion was that if you have matter, then matter is ultimately composed of what? Composed of atoms. तो यहीं से हमारा atoms की कहानी हुई थी. Matter is composed of atoms. Now when I look at matter, my matter can be a pure matter or it can be an impure matter, which we have studied in last class. ये matter को जब हम देखेंगे, this matter can be pure or this matter can also be impure. Agreed? If my matter is pure, my matter can come in two forms. It can come either in an element form, okay, or it may come in a compound form. Are we fine? And if we are impure, we are coming as a mixture form. So we'll not go that deep into mixture. अगर mixture देखें, let's say as usual, our favorite matter, black forest cake.
So black forest cake is a mixture. It's an impure substance. It's a mixture. It is a mixture of many elements and compounds. हो ही सकता है उसमें black forest cake में cream है, तो cream itself is a mixture. Wheat है तो wheat भी mixture है, उसमें बहुत सारे carbohydrates compounds आएंगे, तो ये तो mixture है. लेकिन एक चीज तो समझ में आता है यहाँ से, ये mixture सब कुछ बनी है क्या से? Might be mixture of various compounds. End of the day, do you agree or not? और ये compounds किन से बने होंगे? ये compounds कुछ elements से ही बने होंगे, है कि नहीं? Are you trying to understand what I'm saying? ये जो हमारा impure substance है वो एक mixture है. That mixture can be what? Homogeneous, heterogeneous, solution हो सकता है, colloid हो सकता है, suspension हो सकता है, alloy हो सकता है. But one thing is for certain that that mixture is made up of some compounds और some, अगर वो compounds है तो वो element से बना है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे air हो गया, air is a mixture of gases. बहुत सारे elements से भी ये mixture बन सकता है. Do you agree or not? लेकिन इन सारे कहानी में कैन यू नॉट टेल वन थिंग, अगर कंपाउंड्स है तो उनका लास्ट यूनिट क्या रहेगा? मॉलिक्यूल्स रहेगा. इफ दे आर कंपाउंड्स देन द लास्ट रिप्रेजेंटेबल यूनिट इज मॉलिक्यूल. डू यू एग्री? बट हाउ डिड कंपाउंड्स गेट फॉर्म्ड? कंपाउंड्स आल्सो गॉट फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट्स ओनली. सो इन अ नटशेल यू कांट डिसएग्री विथ मी कि ये सारा कुछ चीज अल्टीमेटली एटम्स से ही बना हुआ है. द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड इज maybe it is not atom of one kind. शुगर है, शुगर में क्या है? शुगर इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. कार्बन की एटम्स भी है पर एटम से बने हैं, इसको आप ना नहीं कर सकते हो. और अगर आपका मैटर ये साइड से है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटम भी हो सकता है एंड मॉलिक्यूल भी हो सकता है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. Oxygen O2 and oxygen as A. But ultimately, are they not composed of atoms? You tell me this thing. Can I now say that matter is composed of atoms? Is this chain becoming clear to you? Now, matter is composed of atoms. Long back, this concept was done. Okay, like in your book, they will say about the Greek person Democritus, है ना? Apple काट रहा था, तो एप्पल काटते काटते उनको ख्याल आया, ये सब चीजें जो है ना आदमी के जिज्ञासा से हुआ है. Man, it's like scratching and get to know और क्या और क्या और क्या और क्या. Man has always got this hunger for knowledge. तो knowledge आया कि एप्पल को काटते काटते कितना छोटा काट सकेंगे. Then you saying naked eye से आपने इतना ही देखा, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यही पीस और बड़ा और छोटा छोटा छोटा. So he conceptualized something which was called as atomos. एटोमोस से एटम आया, वही एटोमोस से ही 4K एटमॉस साउंड भी आता है. And when you come back to the Indian mythology side, then yes, इसमें अणु और परमाणु की पहले से जिक्र है. मैटर को पदार्थ कहा जाता था, अणु इज मॉलिक्यूल, परमाणु इज एटम. तो ये कॉन्सेप्ट तो था दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स. ये पार्ट क्लियर हुआ. आपका थर्ड चैप्टर भी इसी कॉन्सेप्ट से शुरू होता है. इसके बाद वो आपको एटम के बारे में समझाएगा, मॉलिक्यूल के बारे में. आई थिंक अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल वी हैव डन इनफ टॉक दैट एन एटम इज द लास्ट फंडामेंटल एंटिटी when it comes to. आज हम एटम के अंदर घुसेंगे, ठीक है? हाँ, सब एटॉमिक, तभी इंटरेस्ट आएगा आपको. तो एटम इज द लास्ट एंटिटी. Like if I take a piece of copper, the last entity which can be called as a copper is the copper atom. And I gave you one example that if you break a copper atom, you get protons, electrons, neutrons. And if you break the oxygen atom also, you will get protons, electrons, neutrons. Those are all similar. So do you remember my example? I said if a Bong and a Tamilian and a Punjabi goes to where Ratnadeep, they buy the same vegetables, but the dish that they prepare will be totally different. I also buy the same carrot, which a Punjabi person may buy, which a Tamil guy may also buy, but the dish we will make is completely different. So अगर मैं कॉपर के एटम को ऐसे तोड़ के उसके इलेक्ट्रॉन्स बिखेर दूं और आप ऑक्सीजन के एटम को तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स बिखेर दो, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. दे आर द सेम पर्ल्स. उससे हम डबल लाइन नेकलेस भी बना सकते हैं, सिंगल लाइन नेकलेस भी बना सकते हैं. इज दिस मच क्लियर विथ यू? थोड़ा सा एटम के अंदर चलते हैं अभी, ठीक है? तब हमें और क्लैरिटी आना शुरू होगा. आइए, सो लेट्स गेट इनटू समथिंग कॉल्ड सम कॉन्सेप्ट्स. और ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स मैरी करके फिर चैप्टर बढ़िया बनना शुरू होगा. सो एक्चुअली नाउ आई एम गेटिंग इनटू द फोर्थ चैप्टर. हम एटम के स्ट्रक्चर के अंदर घुस रहे हैं. लेट अस सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. किसने डिस्कवर किया, कैसे किया, वो पार्ट अब नहीं पढ़ेंगे. अब सिर्फ ज्ञान लेंगे, फिर देंगे हु डिस्कवर्ड, हाउ डिड ही डिस्कवर एंड व्हाट इट हैपेंड. राइट. सो एटम का मॉडल कैसा रहता है? सो यू हैव एटम,
And earlier it was the concept was atom cannot be divided. All those we will learn, but let us get the concept first. So if you divide the atom, then you start getting the subatomic level. You are getting in subatomic level. ठीक है? एटम को डिवाइड करने से हमें दो पार्ट मिलते हैं. एक हमें मिलता है एटम का न्यूक्लियस और एक हमें मिलेंगे ऑर्बिट्स with electrons revolving around the nucleus. ठीक है, बहुत सारे इसमें चेंजेस आएंगे. दिस इज द फर्स्ट लेवल टू स्टडी एंड वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्टडी इन ग्रेड 9 and you will score marks, everything will be proved wrong in grade 11. That also be prepared. Then you may ask, sir, why are we studying this crap? No, unless and until you study this, you will not understand how the other thing came, because these are like somebody getting to know. किसी कोई बताने वाला तो था नहीं. By research and all, we are getting to know how things. So we have a nucleus. तो देखने में कुछ एक atom ऐसा दिखना चाहिए. So there is a nucleus, and you will have some orbits around the nucleus in which the electrons are orbiting. ऐसे मान लो ऐसे कुछ nucleus है जैसे electrons इसमें orbit कर रहे हैं. ठीक है? So let's me say that if I mention my electrons like this, electrons, so these electrons are orbiting. यहाँ पे भी electron है, and this is my nucleus. Is this clear? Right? नहीं, electron stationary नहीं थे. Electrons nucleus के चारों ओर घूम रहे हैं. Somewhat like a solar system के मॉडल जैसा, जहां आप पढ़ोगे इसको भी, प्लैनेटरी मॉडल पढ़ोगे, जहां हम कैसे कहते हैं हीलियोसेंट्रिक मॉडल. हीलियोसेंट्रिक मींस सन इज एट द सेंटर एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट. ये पता है ना, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, पहले लोग समझते थे दुनिया जियोसेंट्रिक है, पृथ्वी सेंटर पे है और सन घूमता है. Copernicus in those days, like in the European part, the church used to have the highest role. So the church used to, means whatever the church says, you have to, that is final. Copernicus was the first person to go against the church, and he said, no, it's not geocentric, it's heliocentric. The sun is at the center, and so much so that the church abolished him also, that since he did not take his statement. See how people have fought. But today, Copernicus stands true. So if you go in Delhi, so there's a road only named Copernicus Marg. So Copernicus is correct, right? तो ये है हमारा बेसिक मॉडल ऑफ एन एटम. अब बात आता है that sir, इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, पर आपको ये प्रिमिटिव आइडिया होना चाहिए ये न्यूक्लियस आखिर है क्या. सो इन दिस न्यूक्लियस वी हैव पार्टिकल्स व्हिच आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स. क्या बोलते हैं उन्हें? न्यूक्लियॉन्स. इंडिया में रहने वाले लोग इंडियन हुए, तो न्यूक्लियस में रहने वाले लोग क्या हो गए? Nucleons. A nucleons is a collective name that is given to two breed of particles. One is known as proton and one is known as neutron. ठीक है? NEUTRON. तो अब आप आराम से देखिए एटम के अंदर कितने पार्टिकल आपको दिख रहे हैं. पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 and you also have particle 3. इलेक्ट्रॉन्स को मैंने E नेगेटिव लिखा है, मतलब ऐसे लिखते हैं, आप इसे इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं. तो एक एटम में क्या क्या है बेटा? An atom has 3 subatomic particles. क्या क्या है? You have a nucleus. Inside the nucleus, who all are residing? Protons are residing and neutrons are residing. Together they are known as nucleons. और बाहर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. समझ में आया? कितने पार्टिकल? 3 पार्टिकल. तो अगर आप सब एटॉमिक लेवल में हम देखें तो हमारे पास 3 पार्टिकल है. सबसे पहला हमारा आ गया प्रोटॉन, ठीक है. दूसरा आ गया हमारा न्यूट्रॉन और तीसरा हमारा आ गया इलेक्ट्रॉन. समझ में आया? ये दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं. सो कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स बिकॉज दे रिसाइड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. क्लियर है? यहां तक कोई इशू नहीं. आइए अब बात करते हैं इन पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा. राइट? सो लेट्स फर्स्ट टेक द पार्टिकल इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, पढ़ेंगे आगे जाके, अब सिर्फ सुनते जाइए. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था एंड इट्स, let's see how the timeline is. Electron was discovered somewhere around in 1897. Neutron was discovered in 1932 and in 1945 Hiroshima was bombed. Look at the advancement of science.
1932 you discovered neutron, that is the particle which bombs the atom bomb. And how many years later? 32, 42, 45. 13 years later, man has created even atom bomb. कितना dangerous प्रजाति हैं हम लोग, सोच के देखो. And just to give you an idea, जैसे हम बोलते हैं ना atom bomb, US dropped the atom bomb. To give you an idea, from place where we stay, have you seen the artillery center out here? The Tipu Dwar Langar house? That is 6 kilometers from here, 6 kilometers. So the radius is how much? 6 kilometers. When atom bomb was dropped on Hiroshima, up to 150-kilometer radius, people did not even realize that temperature became 6000 degrees centigrade, which is the temperature of the sun. कैसे आप जल गए आपको तो पता. अगर कोई सर्वाइवर आपको मिल रहा है ना, that survivor is not in Hiroshima city, much far away. Are you understanding what is the temperature? 6000 means iron melts at 1400. You must got charred in 1 minute. That is the level of destruction that is there in nuclear energy and atomic energy. So storing those atoms for bombs for US is also a danger. One, Japan is becoming unruly. Another, इन्हें स्टोर करना भी तो डेंजर है. अब कहां स्टोर करें? मिट्टी के नीचे स्टोर होते हैं वो सब. फट गया तो गया. And after that, Nagasaki was bombed. So see the advancement of science. Up till 1897, we did not even know that there is something called electron. 1932, we get to know what is a neutron, and 1945, Japan is bombed. So science has progressed very fast because that was the war period. और war में एक चीज क्या अच्छा होता है ना, science बहुत तरक्की करता है. You think about anything, the shaving razor, the projector, the motorcycle, the machine gun, the camera, the X-ray machine, all are World War II के बीच में. The aircraft, the fighter, first World War did not have, some fighter aircrafts were there. By Second World War, we are not even having fighter aircraft, we are having an AK-47 rifle has also been manufactured. Current microwaves detect the Yes, all those things were all the cameras have come up, the radars have come up, all came up in those little bit of time. So progress of science is very fast. So let's understand about electron. Okay, electron as a particle is a negatively charged particle. Negatively charged particle. That means it will always carry a negative charge around it. This is for your knowledge. Okay, electron is a negatively charged particle. That's why we write it as E negative. ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, negatively charged particle. और कुछ चीजें आपको जानना चाहिए. Charge means you should also know what is the measurement of charge. What is the measurement of charge should be known to you. So just like length, you are measuring in what? Length we measure in Aditi, there was some initial talks that I did for this class. So when you watch the video, you can get to know. I've just started with the 3rd chapter with the condition that we have a lot of time now in our hand. We've just done 2 chapters. So I'm covering broad aspects of 3rd as well as 4th chapter. So when you see the video from the start, you'll get to know. So it's not going exactly as per the textbook, but I feel that all these things you should know when you're going for, then your knowledge will be ekdam fantastically clear. Not limited to only your content. Okay, so negatively charged particle, you should know the measurement of charge. Just like length is measured in SI in what? Meters. So when you have charge, when you measure it in SI unit, it is named after a scientist whose name is Coulomb. C-O-U-L-O-M-B. In grade 10 physics, you will be doing problem on Coulomb, and it is denoted with the capital letter C. किस में denote करते हैं? Capital letter C. Coulomb. 1 coulomb पॉजिटिव, 1 coulomb नेगेटिव. coulomb होता है चार्ज. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन, when you see one electron carries a charge which is equivalent to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, लिख लीजिए. These are things you should know. An electron carries a charge which is equivalent to how much? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Right? In many books you will see they will write that the charge of an electron is negative 1.6. So this is the magnitude of the charge. But क्योंकि ये नेगेटिव पार्टिकल है तो इसका चार्ज नेगेटिव माना गया है. ठीक है ना, मैंने वो नेगेटिव लिखा नहीं है कि किसी किताब में नेगेटिव लिखते हैं, आप लिख भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं. Negative, just why am I saying negative? Because there will be one particle which will be positive charge. Magnitude of charge is same. Are you understanding? It's like force.
इस तरफ 5 न्यूटन से खींच रहे हो, इस तरफ भी 5 न्यूटन, तो अगर ये पॉजिटिव 5 न्यूटन है तो ये नेगेटिव 5 न्यूटन, ये वैसा है। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। समझ में आया? राइट। तो हमारे एटम में 3 पार्टिकल्स हैं, जिसमें एक पार्टिकल हमें मिल गया है एंड दिस पार्टिकल इज नेगेटिव। और एटम को जो है ना, हम मानते हैं कि दिस इज एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब समझ रहे हैं? तुम्हारे अंदर क्या पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं पता, पर जब हम तुम्हें देखते हैं तुम न्यूट्रल हो। न्यूट्रल मतलब तुम्हारे अंदर कोई चार्ज नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? I today at the end of the day, suppose I say that I have got 5 rupees, अभी दोपहर मैंने 3 रुपए खर्च किया, ये खर्च, अल्टीमेटली डे के एंड में मेरे पास फिर 5 रुपीज ही आ गया। तो what expense did I do? Zero throughout the day. Must have I have spent a lot, I have earned a lot. So my overall expense throughout the day is how much? Zero. 5 रुपए से शुरू किया था, 5 रुपए में एंड किया। एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना गया है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, सर इफ द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये न्यूट्रल कैसे होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को कोई तो न्यूट्रलाइज कर रहा है, वो है ये प्रोटॉन। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। समझ में आ रहा है ना? एटम के अंदर अगर पापी है, एटम न्यूट्रल है, तो पापियों को अबॉलिश करने के लिए कुछ पुण्यवान लोग चाहिए, ये है वो पुण्यवान लोग, तभी ना ये इसको काटेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इफ यू सी द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज रहता है? बड़ा सुंदर फिगर है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यही तो एस्टैब्लिश करता है। लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो इसके चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। अब समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक प्रोटॉन है। A proton neutralizes the electron in what? In the charge factor. P. आगे चल के देखेंगे, P नहीं H प्लस करते हैं, वो भी देखेंगे, सब देखेंगे। यही सब चीज हमें सीखना है जो आपके बुक्स में नहीं होगा। और इससे बहुत सारे सवाल पूछे, इलेक्ट्रॉन्स को तो E से, अभी थोड़ी देर के लिए प्रोटॉन को P से ही मान के चलिए। तो स्टोरी क्या हुआ बेटा? वी हैव गॉट अ एटम। हमने एटम के अंदर देखा कि एटम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं द सेंट्रल कोर। आगे देखेंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स किनसे बनते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनते हैं। समझ में आया? एंड उसके अंदर ऑर्बिट्स रहते हैं जस्ट लाइक द प्लैनेट्स के जैसे। इन ऑर्बिट्स में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग और रिवॉल्विंग एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। एटम ओवरऑल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो इफ यू हैव गॉट सम इलेक्ट्रॉन्स, देयर शुड बी सम पार्टिकल्स व्हिच आर पॉजिटिव एंड दोस पॉजिटिव पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स। इतना समझ में आया? एनी क्वेश्चन सो फार? या बोलो बेटा, जो भी है इडियट क्वेश्चंस, यू डोंट वरी, यू जस्ट एम्प्टी योर माइंड। बोलो। रिपेल कैसे करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल ना। करेंगे ना, अभी देखेंगे ना, वो सब धीरे धीरे देखेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा है। अगर प्रोटॉन्स नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो दोनों में अट्रैक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होएगा, रहना ही पड़ेगा, वरना ये इलेक्ट्रॉन भाग के चले जाते ना। ऑर्बिट में है, क्यों ऑर्बिट में है वो भी देखेंगे अभी। वही ऑर्बिट में, क्यों आप ऑर्बिट में हो उसके लिए भी देखेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये दो पार्क करके रखो क्वेश्चन, इनके बीच में द क्वेश्चंस वी हैव सो फार इज देयर शुड बी अ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो फिर एक सवाल आया, भाग के क्यों नहीं जाता है? देन ही इज सेइंग वो तो ऑर्बिट में है। तो ये सवाल थोड़े पार्क करके रखते हैं। तो न्यूट्रॉन का क्या रोल है, ये भी एक बात आता है। तो फिर न्यूट्रॉन तो खत्म ही नहीं हुआ ना, इसलिए एक स्लाइड है। मजा आ रहा है आपको पढ़ के? आगे चलें थोड़ा सा, ठीक है। दो पार्टिकल हमने देखे, अब थर्ड पार्टिकल को देखना शुरू करते हैं। चलिए, आवर थर्ड पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन है। मतलब इसके अंदर चार्ज कितना होगा बेटा? 0 कूलम्स। इसके अंदर चार्ज 0 कूलम है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो हमने 3 पार्टिकल देख लिए। क्या क्या पार्टिकल देखा हमने? हमने पार्टिकल देखा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यहां से अब एक सवाल आता है कि सर अगर हम न्यूक्लियस को फिर से नजर दे, दिस इज व्हाट, दिस इज माय न्यूक्लियस, क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं दैट द न्यूक्लियस इज ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड? क्योंकि न्यूक्लियस में कौन है?
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो रहते नहीं है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में बैठा हुआ है और इनके सामने सामने एक दो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इसको मास समझ लो। और इलेक्ट्रॉन क्या है? वो बच्चा जो साइकिल मार रहा है, कॉलोनी के चारों ओर घूम रहा है, माँ की निगाह, दूर मत जाना, डी टावर के सामने से ही साइकिल करना, वो साइकिल मारते रहता है, क्योंकि माँ का कंट्रोल है ना बच्चे के ऊपर, आगे देखेंगे उसको, ठीक है, इतना समझ में आया। अब जरा बात करते हैं मास के टर्म्स में, ये तो चार्ज हो गया। देखो केमिस्ट्री में दो चीज हम बड़ा पढ़ते हैं, एक होता है चार्ज और एक होता है मास, दोनों में एक फर्क है। क्या फर्क है ना, देखो ये फोन मेरा एक मैग्नेट है और एक छोटा सा नेल भी मैग्नेट है, दोनों ही मैग्नेटिक है। अगर मैं फोन को स्टेशनरी रख दूं, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, क्या फोन नेल के पास जाएगा या नेल फोन के पास आएगा? नेल फोन के पास आएगा, मतलब मास का इंपैक्ट तो है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द चार्ज, हु टेक्स द शॉट्स इज ऑल्सो, तो जिसका मास ज्यादा है वो थोड़ी मूव करेगा, उसके पास मूव करेगा, लोग आएंगे उसके पास। तो आइए थोड़ा सा मास के बारे में देखते हैं। सो व्हेन यू लुक एट एन इलेक्ट्रॉन ना, an electron is a very light particle, very light particle, extremely light. In fact इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा ही नहीं है। जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं ना, you can't see an electron, you can just see the electron leaving an imprint and going. ये आगे जाके आप पढ़ोगे क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है कि क्या इलेक्ट्रॉन वेव है, ये आगे। तो ये सब समझने के लिए अभी से लोग आगे जाके देयर आर सम हाइपोथेसिस कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। इजी चीज के समझाने के लिए 10 पार्टिकल्स होते हैं बेटा, आपने देखा है कभी? नहीं देख पाते हैं, लेकिन सारा दिन स्कूल से आने के बाद जब आप अपना कॉलर ऐसे पीछे करके देखते हैं ना, तो उसमें डस्ट ने अपना क्लाउड छोड़ दिया है, which confirms that there is a particle nature. अच्छा, किसी चीज को पार्टिकल कैसे कब बोल सकते हैं आप? हम किसी चीज को पार्टिकल तब बोल सकते हैं जब उसके पास मास है। और किसी चीज को हम वेव कब बोलते हैं? वेव होने के लिए वेव के प्रॉपर्टीज दिखाना चाहिए, क्या? जबकि डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमने बचपन से पढ़ा है। तो फिर उस रूम में इल्यूमिनेशन कैसे पहुंच रहा है? लाइट कॉर्नर में बेंड हो जाता है। शैडो देखा है आपने? शैडो को गौर से देखिए, शैडो का कभी भी शार्प एज नहीं होगा, नहीं है, जितना भी गौर से देखने की कोशिश करो, देयर इज स्लाइट बेंडिंग। विद नेकेड आई यू आर नॉट एबल टू मेक इट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को थोड़ा और, आई एम डेविएटिंग, बट डिफ्रैक्शन को थोड़ा और समझने के लिए कैसे समझेंगे? लेट्स से अ वेव इज कमिंग, पानी का वेव आ रहा है। इफ एनी वन ऑफ यू हैव गॉन टू से प्लेसेस लाइक बॉम्बे और आपने बोट राइड लिया है गेटवे ऑफ इंडिया में, ऐसे वेव, तो यहाँ पे वेव्स आना शुरू कर रहा है, द वेव्स आर कमिंग। यहां आने के बाद क्या हो जाएगा? ये वेव बेंड करना शुरू हो जाएगा, बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन शोज दिस प्रॉपर्टी। और बाद में देयर वर टू साइंटिस्ट, लाइक जिसको हम बोलते हैं जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट, दे विल एक्चुअली से दैट एन इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, एन इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। और so electron follows the wave theory also, it follows the particle, इस पे भी नोबेल प्राइज है लोगों को। तो ये सब चीज आप 11 में पढ़ेंगे। तो अभी जानने के लिए हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी लाइट पार्टिकल। इफ यू सी द व्हाट यू कॉल द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज समथिंग लाइक हाउ मच? आई थिंक प्रोटॉन इज 9.1, इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 31 के आसपास। इज वेरी लाइट, very light as compared to a proton, it's very light. Let's not get into the numbers now. I can give you the numbers, but that will not help you. Whereas if you go to a proton, now if you go to a proton, देखो कुदरत का चीज, proton is a very heavy particle as compared to an electron. अगर आप इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करोगे तो द प्रोटॉन इज अ वेरी हेवी पार्टिकल। वी से दैट एन इलेक्ट्रॉन्स मास कितना हल्का है पता है? इज ऑलमोस्ट 1/1840 टाइम्स अ प्रोटॉन्स मास। सोचो तो, आधा किलो नहीं, पौवा किलो नहीं, ऑलमोस्ट 1/2000, इतना फ्रैक्शन, कितना हल्का है। और प्रोटॉन का अगर आपको मास चाहिए, प्रोटॉन्स मास इज अराउंड 9.1 into 10 to the power minus 27 kg में है इसका मास। इतना, you don't need to break your head। इसका कितना है? -27। Are you understanding?
इसका how many times? 1/1840 times. So the electron is very light. 9.1 into the power minus 27. Yeah, minus 27, minus 31. I think it's minus 31 in kg. 27 is in gram. Let me just check once. Okay. Don't mind. I also get wrong sometimes. Either it will be 31. I'm wrong either in the unit or I'm wrong in the grams in this. Okay. Mass of proton. Yo, 1.6 10 to the power minus 27. Bingo. I'm full correct. Okay. So this is the mass of a proton. How much does it come out? Yeah, 1.6. Okay. Electron is 9.1. Sorry. This was wrong. This was what I was having fumbling. This is 1.6 into 10 to the power. So this itself is a light particle. Electron is how much? 1.1/1840 times lighter than this. So as compared to the electron, this is a heavy particle. हम तो एटम की बात कर रहे हैं. एटम तो बहुत ही हल्का होता है. समझना, एटम का भी वेट फील हो रहा है ना, बहुत ही हल्का है. अच्छा, अभी आते हैं न्यूट्रॉन पे. न्यूट्रॉन has same mass as that of proton. So do you understand? Having one neutron and one proton in the nucleus is equivalent to having two protons mass wise. न्यूट्रॉन की खासियत समझिए. न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है, पर उसका वजन और प्रोटॉन का वजन एक बराबर है. अब न्यूट्रॉन का काम क्या रहता है जब आप इस एटम में, अब नाउ योर रादर डिफरेंट क्वेश्चन शुड बी, सर हाउ कैन सो मेनी प्रोटॉन्स स्टे टुगेदर इन द न्यूक्लियस? दे आर ऑल लाइक पॉजिटिवली चार्ज, दे शुड ऑल रिपेल. That is what is the atomic energy. The atomic energy binds it, and the nuclear energy is very great energy. आप atom bomb से सीख गए हो. Nuclear energy coming out means it can give you disastrous. So all those, and some of their charges are diffused by these neutral what? Neutrons. Two protons do not want to stay with each other. तो उसके बीच में हमने क्या घुसा के रखा है? Neutrons घुसा के रखे हैं. So the neutrons act as a bit of diffusers also, but they are all packed here. And to keep them together, there has to be some energy. So the nucleus has a lot of energy. And this energy, when you are taking out what? Nuclear energy. ये खाली खाली बात करते हैं ना, oh, we're gonna not attack that country, they're gonna have their nukes. ये nukes यही है. So when an atom bomb splits, it is the uranium-235's nucleus which is actually split. A neutron goes and bombs that. And once it bombs, immediately huge amount of energy will be produced. तो इसके अंदर बहुत एनर्जी छुपा हुआ है, ये जान के रखो. न्यूक्लियर एनर्जी इज ह्यूज. दैट्स व्हाई ऑल दीस प्रोटॉन्स आर केप्ट टुगेदर. वरना ये सब एक साथ रहेंगे ही नहीं ना. हाँ, ये सब आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जैसे आज इलेक्ट्रॉन्स को आगे हम क्वार्क्स भी इसमें से मिलता है. But those we have never have I studied in my engineering, nor you will study. Those are at very high level. So at our level, is this clear now, the three particles? So if you look at the nucleus, now if you think at the nucleus, don't you think the nucleus should be quite heavy? Because the nucleus is having what? Some protons, some neutrons, and both are quite heavy as compared to the electrons. तो अगर हम एक बात अगर मैं कहूँ यहाँ पे, say if I make a statement out here, do you agree with that statement or not? If I say mass of an atom is attributed to the mass of nucleus. बात सही है. सारा वजन तो न्यूक्लियस में ही है, क्योंकि जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका तो कोई वेट ही नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? टुडे इन योर ट्रैश बैग, आपके पास एक ड्राई वेस्ट का ट्रैश बैग है ना घर में, उसमें आपने क्या रख दिया है? आपका एक डंबल ब्रेक हो गया है 5 kg का. सम एक्सरसाइजिंग डंबल ब्रोक, सो इट्स ट्रैश फॉर यू, पुट इट इन ट्रैश. अब तुम उसमें जितने भी कैरी बैग या फिर रफल्स, लेज और ये सब चॉकलेट के डिब्बे डालो, द मास ऑफ दैट ट्रैश बैग इज एट्रीब्यूटेड टू व्हाट? द मास ऑफ द डंबल, है ना, क्योंकि वही मेन कंट्रीब्यूटर है. तो अगर हम एटम के मास के बारे में बात करते हैं, तो एटम का मास का कंट्रीब्यूटर कौन है? न्यूक्लियस. ये याद रखिए. इलेक्ट्रॉन्स, क्या तुम लोग हैवी नहीं हो? हमारा कोई लेवल ही नहीं है उनके सामने. लाइक दे आर लाइक एप्पल्स, द इलेक्ट्रॉन इज लाइक ए कैरी बैग और अ पोर्शन ऑफ ए कैरी बैग. ही डजंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग. ये चीज क्लियर हुआ है, राइट?
तो आइए अब बात करते हैं दो और। तो इतना चीज हमें समझ में आया, हैव वी अंडरस्टूड दिस थिंग? बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, इतना चीज हमें समझ में आया। अब आते हैं कुछ और पैरामीटर्स के बारे में जो कि हमें जरूरत होगी जानने के लिए, और यहां से आपको पीरियोडिक टेबल चाहिए। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास प्लीज कीप अ प्रिंट आउट ऑफ A4 पीरियोडिक टेबल विथ यू। इफ यू वांट आई विल पुट वन हाई रेजोल्यूशन, आप उसको भी प्रिंट रखिए उसको, तभी आप सीखेंगे। नाउ कम, नाउ our next topic of discussion is two measurements we will see. The first measurement is known as two numbers, atomic number. ये सब अब we are seeing this at a very high level, not that high level, we are going deep, but later when I complete your third and fourth chapter you will have no confusion because आप ये सब जान चुके हो अभी। atomic number, ठीक है? Come, now I have got an element, okay, and let's say my element is oxygen. In this class I am not bothered about anything other than the oxygen atom. मैं सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम को देख रहा हूं, ठीक है? So the oxygen will be represented by an oxygen atom, and this atom is always represented by what we know as symbols. Did I not tell you about symbols? Symbols are the first letter of either the English name or the Latin name. If there is a clash between the first letter, like say carbon and calcium, then the second letter comes into role. Like carbon is C, calcium is Ca. Copper is Cu because Cu stands for cuprum, right? Got it? Cadmium is Cd, chlorine is Cl. So the second letter also comes in. We don't have any element as of now with 3 letters. सब 2 letters और 1 letter से हो जाता है। कुछ कुछ हमें symbols, अब यही सब आपको आएगा जब आप periodic table देखना शुरू करोगे। Names will become clear. Like sodium becomes Na because sodium is natrium. Potassium is K because potassium is kalium. Lead is Pb because lead is plumbum. ये सब सारे native names है, वहां से आया है। So let's go to the oxygen atom. Okay. Now अब आप इसको मान के चलो, ठीक है? One atom of oxygen, एक ऑक्सीजन के एटम में क्या क्या होता है मान के चलते हैं पहले। One atom of oxygen will have 8 protons. सर ये कैसे आया? अब मान के चलो, थोड़ी देर बाद देखेंगे। 8 protons रहता है इसके अंदर, 8 न्यूट्रॉन्स रहते हैं इसके अंदर। अब आप खुद सोचो, मैंने आपको क्या बताया था? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। 8 प्रोटॉन घुसते ही इसके ऊपर 8 प्लस बिंदियां लग गई। इट इज हैविंग 8 प्लस चार्ज। इसे न्यूट्रल करने के लिए कितने बिंदी मिटाने पड़ेंगे? 8 नेगेटिव बिंदीज लाने पड़ेंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन का काउंट शायद पता चल ही गया है। सो व्हाट इज इट्स? इट शुड हैव 8 electrons also in it. And let's look at the algebra. This is negative 8, this is positive 8. If we add them up, then it becomes electrically neutral. Have we understood this? Right. So we now talk about atomic number. तो किसी भी एलिमेंट को, जैसे ऑक्सीजन को हमने O से डिनोट किया है, the standard notation of representing an element is with the letter, से हमने यहाँ पे एक एलिमेंट को E से नोट किया है। E is any element. आपको ई प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे ही, सॉरी, आपको ई से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक्स ले लीजिए। अरे यार, ओके, वी टेक इट से, लेट्स टेक एनी एलिमेंट एक्स। आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टिंग ओनली टू ऑक्सीजन, सो लेट्स से एक्स इज एनी एलिमेंट। ठीक है बच्चा, एक्स इज एनी एलिमेंट। तो एक्स का एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर जी, और इसे हम यहां पे लिखते हैं जी। X is my element. No, X is my one atom of the element. X is the symbol. तो उसका Z होता है, और एटॉमिक नंबर होता है काउंट ऑफ प्रोटॉन्स। बहुत लोग पहले बोलेंगे ये काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नो, इट्स काउंट ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर होते हैं, आपने प्रोटॉन्स को क्यों लिया इलेक्ट्रॉन? ठीक है, इस बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, मान लो। वैसे हम प्रोटॉन से ही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं बोलते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन को इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑक्सीजन के पास है 8। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, एटॉमिसिटी आगे आएगी। एटॉमिसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको हम बोलेंगे 8। 8 इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिसिटी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर। ठीक है,
एक और नंबर हम बहुत पढ़ते रहेंगे, उसको हम कहते हैं मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, एंड मास नंबर इज काउंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर को क्या बोलते हैं? काउंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ऑक्सीजन का अगर आप, तो यहां पे हम इसको ए लिखते हैं, तो ऑक्सीजन में ये हो जाएगा कितना? 16। पहले पहले आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे हर कोई मास नंबर इसका डबल होता है, ऐसी कोई बात नहीं। इनिशियली लगेगा, बट इट्स नॉट ट्रू फॉर ऑल। ओके, जैसे कार्बन में 6 का 12 हो जाता है, तो हम सोचते हैं नाइट्रोजन में 7 का 14 हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इज दिस क्लियर? तो व्हाट हैव वी अंडरस्टूड? मास नंबर इज द नंबर ऑफ काउंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट मींस इट विल बी हैविंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एडेड टू इट। फाइन, थोड़ा सा एक छोटा अरिथमेटिक करके देखें। आइए एक अरिथमेटिक करते हैं। हमारे पास एक अननोन एलिमेंट है x। क्या है? x, ठीक है। और हम इसमें कहते हैं that x has a mass number of say 12। x की मास नंबर है 12, and we say the neutrons of x, count of neutrons is 6। Can you tell me what should be the count of electrons and what should be the count of protons? ठीक है ना? तो हमारे पूछा कोई, tell me what is the count of protons and tell me what is the count of electrons। ठीक है, electrons कितना है? तो सबसे पहले हम जानते हैं मास नंबर क्या होता है बेटा। इट इज द काउंट ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द काउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स, and you know protons you are unaware of, but neutrons you know are 6। That means it gives you that the proton count must be 6, and since x is electrically neutral, so it should have 6 negative charge also in it, so the count of electrons should also be 6। ये क्यों? Because x is electrically neutral। क्या ये चीज आपको समझ में आया? x is electrically neutral, ठीक है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे अभी x को? तो x का एटॉमिक नंबर है 6 और इसका मास नंबर कितना है? 12। और अगर हम इसके काउंट देखें, इसमें प्रोटॉन्स है 6, इसमें न्यूट्रॉन्स है 6 और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं हमारे पास 6। आर वी फाइन? मास नंबर समझ में आया? ठीक है, आ जाओ। अब एक बढ़िया एलिमेंट देखते हैं, उस एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन। बड़ा ही डेंजरस चीज है, आज तक इसको अपना पोजीशन नहीं मिला है पीरियोडिक टेबल में। लिखते हैं वहां पे, बट इस पोजीशन इज नॉट देयर। हाइड्रोजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाइड्रोजन के अगर हम एटम को देखें ना, तो इसमें मजेदार चीज मिलता है हमें। हाइड्रोजन एक लौता ऐसा एटम है जिसके पास वी हैव गॉट 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाले ने इसको कोई न्यूट्रॉन नहीं दिया है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट। इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। चार्जेस बैलेंस होने के लिए न्यूट्रॉन थोड़ी हेल्प करता है, प्लस एंड माइनस बैलेंस तो है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझे। तो हाइड्रोजन को हम कैसे दिखाएंगे? दिस इज माय हाइड्रोजन एटम। इफ आई सी द हाइड्रोजन एटम, देन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या है बेटा? 1 प्रोटॉन, और इसको रिवॉल्व कितना कर रहा है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। क्या ये चीज आपको समझ में आया? अच्छा, अब ये जो एटम्स को आपने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला है ना, यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? डू यू नो मैट्रिमोनियल वेबसाइट शादी.com, ये सब है ना मैट्रिमोनियल वेबसाइट। वहां पे किसके फोटो रहते हैं? जिनकी शादियां होंगी, लड़के या लड़की। वहां पे किसी का फोटो भी आपको ऐसा आता है कि मतलब बिना बंधन के किसी ने फोटो खींचा है? डू यू एक्सपेक्ट इन अ मैट्रिमोनियल वेबसाइट? Come on, children, be participative. In a matrimonial website, do you expect any girl or any boy's photo to be in a shabby manner? No. So what are you trying to do in that matrimonial website? You are trying to put your best looking picture. Obviously, तुम बोलोगे सर आजकल मैट्रिमोनियल वेबसाइट ही नहीं चलता, आजकल तो डेटिंग वेबसाइट चलता है। तो चलो डेटिंग वेबसाइट ही ले लो, उसमें आप अपना सबसे खूबसूरत सा फोटो लगाओगे। पर सच्ची में पूछो, क्या आप स्वभाव से उतने ही खूबसूरत हो? नहीं। क्या आपके अंदर जिद नहीं है, स्टबर्न नहीं हो? आर यू नॉट इम्पोलाइट समटाइम्स? यस। डू यू नॉट लाई? यस, आई डू लाई। आर यू ऑलवेज ऑनेस्ट? नो, आई एम नॉट।
सो देयर इज अ डुअल नेचर इन यू। एक जो आप लोगों को दिखाते हो, मैं बहुत सुशील लड़की हूँ, वेलकम टू आवर फ्लाइट, और क्या आप ऐसे ही हो? आप ऐसे नहीं हो। तो इनको जो आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हो ना, ये उतने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है जितना आप सोचते हो। लेकिन जब इनका मैट्रिमोनियल वेबसाइट बनता है, विच इज द पीरियोडिक टेबल, दे कम विद देयर मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस। So in the periodic table, I have got how many? 114 elements. 114 elements are represented by their atoms. Each atom is shown electrically neutral. In a periodic table, each atom is shown electrically neutral, but atoms are not electrically neutral in reality. एकदम इंसान, केमिस्ट्री इज द लिटरेचर ऑफ साइंस। जैसे आप लिटरेचर पढ़ते हो, ह्यूमन बिहेवियर आपको इसमें दिखाई देगा। एटम्स उतने सीधे साधे नहीं हैं जितना आप सोचते हो। अभी के लिए ये बात रखते हैं। सो आर ऑल एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? नो, आइडियली दे शुड बी। सो आई नाउ ब्रिंग अ न्यू वर्ड। Ideally, an atom should be electrically neutral. Ideally, this girl should always be honest, sincere, hardworking, early to bed and early to rise, no stubbornness, no tantrums. Do you get a girl like that? No. That means, do you don't marry? You do. Compromise. तो क्या कंपाउंड्स नहीं बनते हैं? बनते हैं। कॉम्प्रोमाइज, कहीं ना कहीं सब लोग कॉम्प्रोमाइज करेगा। क्या सबकी शादी सबसे होती है? क्या सबका सबके साथ कंपाउंड बनेगा? तो हमारे सोशल स्टडीज सर कहते थे, हम लोग ऐसे बदमाशी करते थे क्लास में, जब हमें अर्ली मैन पढ़ाते थे ना, केव वगैरह, तो सर पढ़ाते अर्ली मैन। हैव यू स्टडीड अबाउट अर्ली मैन लाइक रामापिथिशियस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, निएंडरथल मैन? ऐसे ये सब नहीं पढ़े हो? हाउ फ्रॉम द एप्स मैन केम आउट। So there are different types of man. The Australopithecus is a type of man जिसका थोड़ा बेंड रहेगा। Neanderthal man। तो हमारे कुछ शैतान बच्चे रहते थे, तो वो सर को ऐसे पूछते थे, सर अर्ली मैन के टाइम में शादी की क्या प्रथा थी? सर used to get patently angry, मीन्स इतने सवालों में यही सवाल क्यों सडनली? तो सर भी वैसे ही आंसर देते थे, बेटा उस जमाने में तो कोई पंडित या कोई ये नहीं था कि किसी के गुण मिलेंगे, जो जिसको लाइक करता था उसी से शादी हो जाता था। बच्चा फिर चुप हो गया थोड़ी देर के लिए। Because the class used to, and these are all the guys who are today doing very good in their careers, okay? Very good. So we used to always do these things, छेड़ते रहना सर को, तो सर भी वैसे ही आंसर देते थे। तो ये सारे एटम्स को याद रखिए, सारे एटम्स सारे के साथ शादी नहीं करेंगे। There will be a compromise, and they are not so good looking as they look like. What was the good looking factor out here? That is about their neutrality. So they won't be neutral. ठीक है, इतना समझ में आया? आइए, हाँ, मेटल्स और नॉन मेटल्स में शादी होता है, मेटल में शादी नहीं होता है, नॉन मेटल को शादी करता है, बहुत सारा कुछ देखने में आएगा। चलें आगे, चलिए एक और नया कॉन्सेप्ट अभी सीखते हैं। तो हमने थोड़ा सा एटॉमिक नंबर्स, इन सब चीजों को डेप्थ में पढ़ेंगे आगे जाके, पर इनके बिना केमिस्ट्री नहीं शुरू कर सकते। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, सिंस वी हैव लर्नड लिटिल बिट अबाउट, अब पिक्चर कैसा है? आई गॉट एन एटम, आई गॉट अ न्यूक्लियस। So the nucleus, अगर कोई आपको पूछे what is the charge of the nucleus is positively charged. Don't you agree? Yes, the nucleus is positively charged, right? Now, अब सवाल आता है, जैसे आपने एक सवाल पूछा ना, पहले वो जरा आंसर कर देते हैं। तो ये ले लीजिए, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है ऐसे, और मान लीजिए ये एक ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट को सिंप्लिसिटी के लिए, ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल, वैसे अभी आप 9th में पढ़ोगे इलिप्टिकल, हायर क्लासेस में जाके अलग अलग शेप के ऑर्बिट आते हैं, इसको एक ऑर्बिट मान लेते हैं। फॉर आवर नॉलेज, इसको इलिप्टिकल की जगह साइंस को इजी करने के लिए, लेट मी टेक दिस ऑर्बिट एज सर्कुलर। जैसे प्लैनेट्स के ऑर्बिट को भी सर्कुलर से ही सारे डिराइवेशंस होते हैं, बाद में उन्हें इलिप्टिकल। दिस इज द ऑर्बिट। द क्वेश्चन अबाउट दिस गर्ल वाज दैट द इलेक्ट्रॉन should always be attracted to what? Should be attracted by the neutron, because you've got a lot of protons out here. Now let us look at the oxygen atom. The oxygen atom has got 8 protons out here, 8 positive people, and the electrons are moving out here. How many electrons in an orbit? We'll come to that. Let us take one poor electron who is moving, और ये 8 उसको क्या बोलेगा? आ जाओ, आ जाओ। अब इसको क्या करना है? आजा आजा नहीं करने के लिए, so there will be what? There will be a force out here. What is this force? This force we'll call as the electrostatic force of attraction. Go back to grade 8 non-contact forces. Electrostatic force of attraction. Do you agree or not?
अब इस फोर्स को इसको काटना पड़ेगा। वो इस फोर्स को कैसे काटेगा? वो इस फोर्स को काटेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ये यहां पे रोटेट करेगा। तो वंस एनीथिंग रोटेट्स, इमेजिन आप जब आप यू टेक समथिंग इन योर हैंड एंड यू स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस, योर मदर टेल्स यू, हे डोंट डू, समबडी विल गेट हर्ट। व्हाई? बिकॉज जैसे ही फटेगा पटाख से वो चीज जाएगा। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गया, सर्कुलर मोशन में जब भी कोई बॉडी रहता है, द बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एंड हाउ विल दैट फोर्स? Radially outward. Take one small bucket in your hand, as I keep telling you, the bucket in which restaurant serves you dal fry. Take the bucket full of dal fry and rotate it with whole speed. एक ड्रॉप दाल नहीं गिरेगा नीचे, नहीं गिरेगा। धीरे से करने से गिरेगा तुम्हारे मुंह के ऊपर। जब आप जोर से घुमाएंगे वो नहीं घूमेगा, बिकॉज द दाल इज एक्सपीरियंसिंग एन आउटवर्ड फोर्स ऑलवेज टू इट्स radius, radially outward. See, this is called the radius. So my centrifugal force will be acting, centripetal force will be acting as centrifugal force as a radially outwards. यही तो पंप का कॉन्सेप्ट है। पंप, water pump. Have you seen? You have got water pump in aquariums. You have got water pump in those, वो जो बुद्धा के हाथ से पानी आता रहता है। पंप करता क्या है? अंदर प्रोपेलर्स घूमते हैं। So the propellers take the water and they start moving in a high speed. So the water can eject out radially outwards. Are you understanding? So there will be continuously a radial force also that this electron must experience. Otherwise, ये electron टक करके इधर आ जाएगा। वो रोटेशनल वेलोसिटी में आप घूमो ना, आप इसको पकड़ के आप इसको घुमाओ और चट करके काट दो, बहुत तेज घूमता है। कोई भी चीज जोर से जब घूमता, अच्छा एक बढ़िया एग्जांपल, केक बनाए हो कभी? हाँ, तो हाथ से बैटर घुमाए हो, या फिर आपके पास अगर चर्नर है तो आप उससे कर रहे हो। हाथ से जब बैटर घुमाते हो, कभी कभी अगर थोड़ा किसी को बात करते थे, छटक करके थोड़ा बैटर बाहर नहीं जाता है, तुम्हारे टेबल के साथ गिरता है कभी भी? एकदम टाइल पे जाके छिटकेगा। एंड इफ यू आर हैविंग दैट ऑटोमेटेड चर्नर जिसको केक बैटर मिक्स करते हैं, अभी जैसे मैंने आइसक्रीम बनाया था, उसमें अगर थोड़ा सा भी ऊपर उठ गया ना तो पूरे टाइल में चर्रक करके जाएगा। डोंट यू थिंक देयर इज अ फोर्स? Where is this force? अब बैटर में कुछ नहीं चलाने से बैटर जाएगा वहां पे। Every rotation has got a centrifugal force. मेरी ग्राउंड में बैठे हो, फीलिंग नहीं होता है छिटक के जा रहे हो। साइकिल तो चलाते हो ना, जब बहुत स्पीड में टर्न लेते हो तो फट्टू वाली हालत क्यों होती है? आप स्पीड घटा, क्योंकि आपको लगता क्या है साइकिल छिटक के चला जाएगा। That's when the friction is not able to hold you, you'll skid outside. तो इलेक्ट्रॉन मस्ट ऑल्सो हैव, और इसका जब हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं mv²/r. मोर इज द वेलोसिटी, मोर इज दिस, दीज टू फोर्स बैलेंस ईच अदर। अगर इलेक्ट्रॉन अपना वेलोसिटी घटा देगा ना, and that force is also keeping it in this circular orbit, because every time it will be in tangential direction, और आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे बैलेंस करके रखता है। लेकिन एक सवाल आता है, अगर इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी खो दे, सपोज एन इलेक्ट्रॉन लूजेस हिज एनर्जी, देन व्हाट शुड हैपन? द इलेक्ट्रॉन विल नो मोर बी एबल टू मेक अ राउंड पाथ। इसके ऊपर भी बहुत सारे थ्योरीज हम पढ़ेंगे। इट विल टेक व्हाट? स्पाइरल पाथ, धीरे धीरे हाफते, एंड बिकॉज इट इज ऑल्सो पुलिंग। इट्स समथिंग लाइक, वेरी बैड एग्जाम्पल आई एम गिविंग, बट इफ सपोज देयर इज एन एनिमल जिसका आपने थ्रोट स्लिट कर दिया है, so the animal won't be able to run because it is bleeding, so tak, and it is pulling continuously, so the electron will come and collide with the nucleus, atom is lost. Atom की stability होने के लिए this electrostatic force has to balance the centripetal force. No, we don't charge the electron carries a fixed amount of charge, but it keeps on rotating. See, again, you have to understand the electron is not a particle as you think. You are thinking like some bead is rotating. It's very, very small. वो इतना छोटा है कि आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी नहीं देखते. You just see its imprint on that. Have you understood this one? Okay. So, okay, we have time. So, one more thing, next concept we should understand is something called electronic configuration. ये समझ लिया, आपका आधा चीज 9th में क्लियर हो जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. What is electronic configuration? Let's understand the meaning of the word configuration. हम लोग कहते हैं ना, हमारे अपार्टमेंट में 07 series, 06 series, 05, we take stock like that. Every series flat has got a configuration. What is configuration? घुसते ही इधर बेडरूम, इधर किचन, उधर लिविंग रूम, उधर बालकनी.
So that is, say, suppose the 0-7 configuration. So what is electronic configuration? एक एटम में इलेक्ट्रॉन सजते कैसे हैं? Electronic configuration means how are electrons arranged in an atom. This means it's going to tell me how are electrons arranged in an atom. For example, अभी अभी आपने क्या पढ़ा? अभी अभी आपने पढ़ा ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है जिसमें 8 प्रोटॉन 16 और इसमें इलेक्ट्रॉन की काउंट कितनी है? इलेक्ट्रॉन की काउंट है 8. 8 प्रोटॉन कहां पे है? न्यूक्लियस पे. उसका टेंशन नहीं है, टेंशन है कि ये 8 कहां पे है. इसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रूल. इसके लिए हमें एक रूल देखना पड़ेगा और इस रूल को देने वाला था नील्स बोर. The Bohr's electronic configuration. This is a part of your course, okay? In chapter 4, Bohr's electronic configuration given by Niels Bohr. Niels Bohr has got Nobel Prize with him. Niels Bohr's son Age Bohr also has Nobel Prize with him. The nephew also has Nobel Prize with him. But the irony is that जो भी आप यहाँ पढ़ने वाले हो, ये सब गलत प्रूव हो जाएगा ग्रेड 11 में जाके. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल है, ये रूल चलता है ओनली अप टू एटॉमिक नंबर 1 to 20, विच मींस फ्रॉम हाइड्रोजन अप टिल कैल्शियम. अब यहां आपको पीरियोडिक टेबल जरूरत पड़ेगा बिकॉज यू हाउ आई रोट कैल्शियम यू विल से. आपको कैसा मुझे पता है 20 एटॉमिक नंबर इज कैल्शियम. ठीक है बच्चा. बियॉन्ड 20 ये रूल काम नहीं करता है. तो बियॉन्ड 20 क्या रूल काम करता है? दैट वी लर्न फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड दैट रूल इज नोन एज Aufbau's principle. So one of our professors used to ask, Aufbau belong to which country? बच्चा पढ़ता नहीं है ना, वो भी आंसर देता है सर स्वीडन. Aufbau is a German word which means building on. वो कोई आदमी का नाम नहीं है. Are you getting the beauty? Aufbau नाम का कोई आदमी नहीं है. AUFBAO, the BAU, the teacher used to ask in Viva. General Viva engineering में पूछा उसको. General Viva engineering में फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर पूछा था. Aufbau's principle, he belonged to which national? What was his nationality? वो भी स्ट्रेट बोलता है स्वीडिश सर या समथिंग. लेकिन Aufbau कोई आदमी का नाम नहीं है. Aufbau means how to build on, the build on principle. ठीक है. तो आज हम क्या करते हैं, क्लास को रखने से पहले थोड़ा देख लेते हैं 1 से 20 तक हमें जो एलिमेंट्स हमें जानने चाहिए. ठीक है. सो आवर फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन एंड आई विल राइट बाय सिंबल्स. Our next element is, हमारे पीरियोडिक टेबल को ही देखते हैं. नेक्स्ट एलिमेंट इज हीलियम. ठीक है. पीरियोडिक टेबल में बेटा जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रुप. सो ये हमारा हो गया ग्रुप 1. ठीक है. और हीलियम जो है ये रहता है ग्रुप 18 में. तो बीच में बहुत सारे ग्रुप आएंगे. तो पहला वाला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन. दूसरा वाला एलिमेंट कौन है? हीलियम. उसके बाद आता है लिथियम. उसके बाद आता है बेरिलियम. बेरिलियम आ गया हमारा ग्रुप 2 में. उसके बाद सन्नाटा, एकदम सन्नाटा. सन्नाटा होने के बाद कौन आएगा? सन्नाटा होने के बाद आएगा बोरॉन. बोरॉन आएगा ग्रुप 13 में. और फिर है ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17. बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर आएगा हमारा नियॉन. ठीक है. तो लिथियम के बाद आएगा हमारे यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम. ठीक है. बोरॉन के नीचे आएगा एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे आएगा सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे आएगा फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन और इसमें आएगा आर्गन. और फिर यहाँ पे आएगा हमारा पोटेशियम और कैल्शियम. इन्हीं 20 को ही आपको जानना चाहिए एट योर छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चास ऑफ ग्रेड 9. Although your syllabus will never say, बेटा अगर आप इनको जानोगे तो आपकी केमिस्ट्री कभी भी गलत हो ही नहीं सकती है. ठीक है. पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं बेटा? 18 पीरियड्स होते हैं. ठीक है. ये हाइड्रोजन और हीलियम, इसको हम कहते हैं पीरियड 1. ये क्या हो गया? पीरियड 1. इसके बाद हमारा आता है पीरियड 2. इसके बाद आता है पीरियड 3 और इसके बाद आता है पीरियड 4. थोड़ा सा 2 मिनट और. हाँ बेटा.
तो इसको हम कहेंगे पीरियड 2, पीरियड 3 और ये हमारा पीरियड 4। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 7। हमें इतना जानने से काफी है। इसमें एक पीरियड हमारे लिए बहुत मायने रखता है, लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इज देयर, एंड दैट पीरियड इज ये 18 वाला। 18 वाला, 18 को हम कहते हैं नोबल गैसेस, एक और नाम है इनर्ट गैसेस। और ये क्या है, ये मेरे लैंग्वेज में मैं कहता हूं कॉलोनी के अच्छे बच्चे। इनका लेकिन जो चेहरा आप देख रहे हो शादी.com वेबसाइट में, ये रियल लाइफ में भी वैसे ही है। तो इनमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। ये होते हैं हमारे अच्छे बच्चे, inert gases. They are, as I said, that the atom is electrically neutral. इसमें आपको हमेशा electrically neutral दिखेगा. They do not show any tantrums. They wake up early in the morning, they brush their teeth, trim their nails, study on time, are very apologetic, very polite, humble, honest, जो मान सकते हो. That means all these other बच्चास which are like you, then your parents will always set an example what? इनके जैसे बनो. इसीलिए इनका नाम है कॉलोनी के अच्छे बच्चे। हमेशा इसका एग्जाम्पल होगा। वो देखो ना, शर्मा जी के बेटे जैसा बनो, ये है वो शर्मा जी का बेटा। ठीक है, और अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आना है तो आप यहां से इसको कैसे बोलते हैं, जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 मीन्स ग्रुप 1 को, और ये धीरे धीरे आपको सब याद आना शुरू हो जाएगा जब आप 12 में जाए। तो ग्रुप 1 में हम कहते हैं, हालांकि यू शुड नो ओनली 20, तो इसको हम कहते हैं है ली ना की रब से फरियाद। कोई कहता है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, एक ही बात है। रूबी मीन्स रूबिडियम, CS मीन्स सीजियम और FR मीन्स फ्रेंशियम। है लीना की रब से फरियाद, इसको बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर आप जब यहाँ पे ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो आप ग्रुप 4 में पीरियड 4 ऐसे बने, तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट होता है पहला ट्रांजिशन सीरीज होता है शक्ति वक्रो मन पीको नीकू जन। सक मतलब स्कैंडियम, टी टाइटेनियम, वक वेनेडियम, क्रो क्रोमियम, मन मैंगनीज, पी आयरन, को कोबाल्ट, नी निकल, को पीको नीकू, नीकू कू मीन्स कॉपर, जन जिंक। ऐसे धीरे धीरे हो जाता है। फिर आ गया वाई जर्नब तेरा रू रो रिया रे, ऐसे करके आप 11 में जब तक जाओगे आपको सब याद होना शुरू होगा। तो हमारे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, 1 2, ये हो गया हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वी विल स्टॉप हियर टुडे। इसको थोड़ा हम और डिटेल पढ़ेंगे, जितना इसको हम डिटेल, सो नेक्स्ट क्लास यू शुड हैव योर पीरियोडिक टेबल विथ यू, बिकॉज द इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, जहां आप देखोगे लड़ाई झगड़े, देन दिस हैपनिंग दैट हैपनिंग। सो व्हाट ऑल डिड यू अंडरस्टैंड, बारिंग द स्टोरी ऑफ that orbital and the energy, that part is not that important. What you understood is first 20 elements are very important for you, whether you're in grade 9 or you're in grade 10, and these 20 elements are important because these are those 20 which will follow Niels Bohr's electron concept. जैसे Bohr gave a rule, you are the manager of the front office guy of a hotel, the entire hotel is vacant and slowly tourists are coming in, you have to allot them rooms. तो आप तो बोलोगे ना पहले ग्राउंड फ्लोर भरे, आप थोड़ी बोलोगे आप 18 फ्लोर चले जाओ, आपको हाउसकीपिंग वाला पीटेगा, सर इस पूरे फ्लोर में एक रूम में काम करो फिर इस फ्लोर में जाओ। सो यू फिल इट बाय अ रूल, दैट रूल इज बोर्स रूल, and that we will learn in next class how the electrons are, but remember that rule is applicable only up till 20. After that this rule fails, and that rule you will understand going in grade 11, and that rule never fails. That is quantum mechanical model. तो इतना चीज समझ में आया ताकि आपको इंटरेस्ट है। वी हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम इन आवर हैंड, इस चीज को एकदम सीरियसली देखेंगे, फिर आप देखो कोई भी क्वेश्चन आप आंसर कर पा रहे हो।
And I bet many of your grade 11s also will not have this clear, because this chapter should be dealt in this manner. फिर चैप्टर को हम खत्म करेंगे, आपको चैप्टर इजी लग जाएगा फिर. ओके, प्लीज. Because why can't this boy be considered the way he makes a puppy face? Because you have seen certain properties in him which contradict the puppy face he makes. His puppy face is a face which shows that he is a very quiet child. But I have seen him throwing tantrums. I have seen him deserving in class. His last year's record was 8 times he have been turned out, 12 times or 8 times he has been turned out by me in the class. So do you think he should have that puppy face? Is that a correct picture of him? No. These atoms also have some hidden buckles in them. We have to hunt them and study. That only makes you. So my request would be, when you come for the next class, please go through this video, because this is not where you'll get in Lakshmi Singh or right now. बस इसको पढ़ के आइए. ये नॉलेज के साथ जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना, मक्खन जैसा वो आता है ना, कोटक महिंद्रा यूपीआई मक्खन जैसा, ये मक्खन जैसा, सब कुछ मक्खन जैसा हो जाएगा. ठीक है, चलो बाय बाय. कैच यू ऑल इन योर नेक्स्ट क्लास. ओके.